Let's come up with some magical methods on compound interest or simple interest. ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन है कंपटीशन का भी, और अगर ये मुझे एमसीक्यू से करना पड़े, इफ देयर इज एन ऑप्शन, देन हाउ कैन यू सॉल्व विद इन 15 to 20 सेकंड्स? इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना है कि टाइम, ये जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, इन दैट केस मेरा टाइम 2 years ही होना चाहिए, and whatever is the given, the difference, this is given you 5,000, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, दैट इज, लिख लेना, दैट इज अंडर रूट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए रूल है, मगर ये तभी लगेगा फॉर्मूला जब टाइम 2 years का हो। इन दैट केस आपको आर ढूंढना है, R is equals to under root D for difference, किसका डिफरेंस? Between SI and CI upon principal into 100, परसेंटेज में जाना है इसलिए। This is applicable when the time is 2 years. Now difference is 72, principal is 5,000 और ये अलग से, दैट इज, इसको आसानी से काट लो, 8 9 72 एंड 8 into 625 is 5,000। क्या फायदा मिलेगा अभी देखोगे आप। नाउ 9 किसका अंडर रूट है? बहुत आसानी से 3। 625 किसका होता है? 25। एंड फॉर परसेंटेज 100, मर्डर, और इस पे गोला लगा लो। दिस इज एमसीक्यू मैथ्स ओलंपियाड क्वेश्चन। ये फॉर्मूला मैं तभी लगाऊंगा, रिपीट, जब मेरे को टाइम दिया हुआ रहेगा 2 years, then only I am going to apply this formula। जब भी difference between CI and SI is available and time is 2 years, you can calculate the rate of interest using this formula, which is going to help you to crack any exam. Thank you. So check one more powerful algebraic expression method you have, where if x plus 1 by x is k, और प्लस में ही निकालना है। In that case, suppose x plus 1 by x is given to you 4, and I am attempting my maths Olympiad. So यहाँ पर k क्यूब, यानी कि क्या कर देंगे, 4 का क्यूब माइनस 3 into 4, that is 64, minus 12, that is 52। खत्म। हेलो पब्लिक, आंसर आ गया। अब अगर ये माइनस में होता और आपको माइनस में ही आंसर निकालना है, सपोज ये 8 ले लेते हैं, 8 ले लिया मैंने। नाउ व्हाट इज 8 क्यूब? व्हाट इज 8 क्यूब? आप सबको याद है? 72। प्लस रहेगा इस बार, प्लस 3 into 8, that is 512 plus 24। that is 536। खत्म, that's all। नोट कर लें प्लीज। So noted, sir. How many years a sum of money becomes 5 times at 8% per annum? You can give your answer orally. Orally.
orally. Time out. Time out. The answer is 50 years. क्योंकि कल ही हमने बताया था जब भी टाइम्स वाला क्वेश्चन आए आपको यहाँ पर टाइम निकालना था. So n minus 1 upon r into 100. N is 5 upon r into 100, and that is 50%. Sorry, my mistake. years. ये कल हमने डिस्कस किया था, आपको दिया. इफ यू हैवंट रिवाइज्ड तो दिक्कत आएगा. दिस आर वेरी पावरफुल मेथड. करना है. The sum of money has increased by 40% at the rate of 5% per annum. You have to calculate time, and your time starts now. Sum of money increased by 40%. अब सोचो कितना शानदार क्वेश्चन. Need to give a thought. Principal we have guided always 100%. तो 40% जो बढ़ गया वो बढ़ना क्या है? What is that? So, what is that 40%? 40% is nothing but simple interest. और कल ही मैंने आपको बताया था कि R into T overall percent is SI%. R आपको पता था, टाइम नहीं पता, SI पता था. बिना कुछ किए मस्त आंसर. खत्म. This is what you're supposed to. You didn't fight. Learning मजेदार होता. Good and competitive questions is there. Must question है. Grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Anyone can participate. कह रहा है कोई sum of money है. After 15 years it is becoming 4 times. जब भी times आएगा, I guided you. It will be amount. It will be amount. तो डेफिनेटली कोई प्रिंसिपल है. अगर 1 दिस हैज बिकम 4 तो सिंपल इंटरेस्ट कितना पा? 3. इसको होने में उसको कितना साल लगा? इंटरेस्ट 15 साल. तो अगर कोई 15 साल में 3, राइट, तो एक में अपने पास कितना आ जाएगा? यस और नो? Yes. So that is how many parts then we have? 4. Yes or no? 4 into 5. Answer is 20 years. That's all. क्योंकि simple interest is responsible to give my answer either in time or in rate, and that's कुछ भी नहीं करना. Next move करते. If a sum of money, if a sum of money becomes 4 times in 15 years, then how much time? Then how much? If a sum of money becomes 4 times in 50 years, then how much? Just let me frame the question. If a sum of money, just a minute. 5 times. If a sum of money becomes 4 times in 15 years, पहले वाले question का reverse है, then how much time will
सर it 5 become times हो in गया. 20 years. In 20 years. तो again जैसे 4 times दिखा यानी कि ये अमाउंट हो गया 4, प्रिंसिपल 1, सिंपल इंटरेस्ट 3, इसको होने के लिए 15, तो डेफिनेटली 5, तो 20 में से then how much time will it become in 20 years? तो 20 में से 5 को डिवाइड करोगे, ये सिंपल इंटरेस्ट आया है, तो अमाउंट में एक ज्यादा कर देना, तो आंसर इज 5 5 टाइम्स. times. These are all competitive based question, लोगों को सॉल्व करना ही नहीं आता. So please, you must solve it properly, must watch the video also. So कितना टाइम है? 7 years. टोटल कितना बढ़ गया? 21%. और वही अमाउंट में कितना दिया हुआ है? 420. तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल, मतलब 100%, यस और नो? Yes, sir. परसेंट से परसेंट कट गया, 21 टू जा, तो आंसर 26. खत्म हो गया. सर 2000 होगा ना? सॉरी, ऑब्वियसली. दैट्स ऑल. कितना सा टाइम लगा आपको यहाँ सोचना था? बाय इंक्रीजिंग हर साल 3%, 7 साल, और ये 21% इनडायरेक्टली क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट, जो कि अमाउंट में कितना दिया हुआ है रुपया में? 420. कितना शानदार क्वेश्चन है ये सब. कंसेप्ट है, द टाइम इज 5 year, रेट ऑफ इंटरेस्ट is decreased by 2%, then in rupees it is 200, then what is your principal? Same concept. सर ये 5 years के लिए. 2% 5 एक years. साल के लिए, 2% एक साल के लिए, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा? 10%. 10. ये जो 10% है जो डिक्रीज हुआ वो रुपीज में कितना है? 200. तो 100% कितना होगा? सर 1800. 2000. कंसेप्ट तो वही था. सर मैं प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है. वेट. 7% deposited for 7 years, right? पहले टाइम कितना है? 5 years, yes or no? Yes, रेट है, sir. रेट है 7%. इफ डिपॉजिटेड फॉर 7 years, अगर 7 साल के लिए डिपॉजिट करता तब उसको कितना रुपया ज्यादा मिलता? 280. 280. तो ये देखो कि 5 साल में उसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 35%. 35%. और 7 year में कितना बना? 49. इन दोनों में कितना डिफरेंस? 14%. और वो रुपीस में कितना है? 280. तो प्रिंसिपल के लिए हम परसेंटेज कितना लेते हैं? 100%. 10 से परसेंट गया, 14 से गया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 2000. बताओ.
और मेरा भी 2000 आ रहा है 2000 ही आंसर है, मेथड भी राइट होना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के कराए हैं, ये आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, और ये हर कंपटीशन का हिस्सा है, सो रिवाइज जरूरी है। एंड आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो आल्सो सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ ₹800 is increased to ₹920 in 3 years. Interest is increased by 3%. Then what will be the amount? Time remains same. What was the concept? By 120 रुपया। आप बोलोगे यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3%, एक साल के लिए 3%, सो 3 साल के लिए 9%। So what is 9% of the principal? That is 72। तो जो अमाउंट पहले 920 था, अब ऐड होकर कितना हो गया? बस। These are some of the powerful concept of simple interest. The normal book of grade 7th 8 में नहीं मिलेगा। And along with that, I have selected few questions for you. Try and share our videos को देखें, उसमें comments करें, लोगों तक पहुंचाएं, and make this year 2025 from fear of maths to I love you math. This is Dheeraj sir. Thank you. Om Aram Namah.